Okay, friends. Prisha Swara. Okay, Arya. How are you? Chalo. Can we start our lecture? The unit is related with organic chemistry, and unit number is 12. And heading of unit is basic concepts of organic chemistry. First of all, we will try to understand about the electronic configuration of elements. You see, in our everyday life, we can observe state of matter three types. Substance may be solid, otherwise liquid or gas. Finally, any substance is constituted of so many particles. Particles are constituted of so many molecules, and finally molecules is constituted of so many atoms. तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है? एटम एक स्फीयरिकल शेप है, बीच में एक न्यूक्लियस होगा, चार ऑर्बिट्स होगी, ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स होगी. देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एटम. दिस इज द न्यूक्लियस. ये ग्रीन टाइप की, दिस इज द के ऑर्बिट. सेकंड इज एल ऑर्बिट, मेन ऑर्बिट. 1s orbital belongs to k orbit and L orbit contains 2s, 2px, 2py, 2pz. This is the wrong explanation. फिर भी beginning है इसलिए मैंने ये बताया है. Finally 2px, 2py and 2pz are degenerate orbital. They are arranged overlap to each other. लेकिन थोड़ा beginning में थोड़ा गलत सीखेंगे, बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा. Yeah, in our periodic table, elements are arranged in a fixed table. That is our periodic table. Hydrogen number 1, उसमें 1 electron होगा, and 1 electron always goes to 1s orbital. The number of electron remain in orbital is indicated by power 1s1. Hydrogen में एक ही electron होगा. इनको से of helium, atomic number is 2. That's why 2 electrons are present in helium. ये 1s में 2 electron रहेंगे. Therefore, electron configuration is to be indicated by 1s2. In case of lithium, atomic number is 3. That's why 3 electron will be present in nucleus. के चारों और जो ऑर्बिटल्स है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे होगी? 1s में 2 जाएंगे, 2s में 1 जाएगा, तो 1s2, 2s1. सॉरी, ये दिस इज हीलियम में 1s2 हो गया, 2s1. इन केस ऑफ बेरिलियम नंबर 4, 2s2, 2px0, 2py0, 2pz0. बोरॉन नंबर 5, वो इसकी 1s2, 2s2, 2px1, 2py0, 2pz0. कार्बन के बारे में 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. In case of nitrogen, 1s2. Instead of 1s2, we can write helium-2. It is the zero group elements. 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. Oxygen number 8, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. Number 9, fluorine, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. In case of neon, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2. एटॉमिक नंबर से टैली होने चाहिए. यहाँ 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2, ये 3, इसमें 2 + 1 3, ये 4 तो 2 + 2 4, ये 2 + 2 4 + 1 5, 2 + 2 4 + 2 6, 2 + 2 4 5 6 7, 2 to 4 to 6 7 and 8, 2 4 6 8 and 9, 2 4 6 8 or 10. Yeah. One more thing. Hydrogen possess, both hydrogen and helium possess only k orbit.
From lithium to neon, electron enters in L orbit, and L orbit is consist of 2s, 2px, 2py, 2pz orbitals. Now you see bonding capacity. What is bonding capacity? If yes, how many maximum bond can be formed by any element? It is known as bonding capacity. And if you want to find out the bonding capacity, you write down the electronic configuration of any element, and now you isolate the outermost orbit, or now you calculate the total number of orbitals present in its outermost orbit. सबसे बाहर की ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स है, जितनी ऑर्बिटल होंगे वो ही उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी है. ये सभी में, इसमें तो एक ही है, यहाँ एक ही ऑर्बिटल है, तो बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम की बॉन्डिंग कैपेसिटी 1 ही होगी. लेकिन यहाँ लिथियम टू नियोन के बारे में ये 1, 2, 3 and 4. That's why all the elements from lithium to neon can form maximum 4 bonds. कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग कैपेसिटी जितने बॉन्ड बना सकता है या तो उससे लेस बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा. नाउ एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा कितना बॉन्ड बनेगा? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या सबसे बाहर की ऑर्बिट में यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. कोई भी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो पेड कहा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो अनपेड कहा जाएगा. ऑर्बिटल के ऊपर 0 लिखा, दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल. इन केस लिथियम possess only 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एज पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बाय एलिमेंट. लिथियम के बारे में 1, बेरिलियम के में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो 0. ये बोरॉन में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनेगा. इन केस ऑफ कार्बन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट्स व्हाई कार्बन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स. नाइट्रोजन के बारे में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स. ऑक्सीजन के बारे में ऑक्सीजन possess 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, दैट्स व्हाई 2 बॉन्ड बनेगा. या फ्लोरीन में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई फ्लोरीन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड. इन केस ऑफ नियोन नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, दैट्स व्हाई नियोन 0 बॉन्ड बनाएगा. अब चलो एक्चुअल बॉन्ड, हाउ मेनी एक्चुअल बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय एलिमेंट. तो देखो या नियोन में जरा रिवर्स लेते हैं. नियोन में यस 0 बॉन्ड बनेगा. फ्लोरीन possess 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई फ्लोरीन में 1 बॉन्ड बनेगा. जब फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनेगा, एट दैट टाइम दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. ये जो 3 पेयर है ये डॉट के फॉर्म में लिखी जाएगी. व्हेन फ्लोरीन फॉर्म 1 बॉन्ड, एट दैट टाइम 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज टू बी इंडिकेटेड. HF हाइड्रोजन फ्लोरीन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ये 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है. चलो ऑक्सीजन के बारे में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कैन फॉर्म थ्रू 2 बॉन्ड्स. अब समझो, व्हेन ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए. ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हेन ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, एट दैट टाइम 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इज टू बी इंडिकेट ऑन ऑक्सीजन एटम. 2 पेयर, ये 2s2 और 2px2 की. H2 में H2 इलस्ट्रेशन है, उसमें ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहाँ 2 पेयर इंडिकेट करना पड़ेगा. नाइट्रोजन के बारे में देखो, नाइट्रोजन possess 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स. 3 बॉन्ड्स के बारे में देखो तो यहाँ when nitrogen form 3 bonds, at that time 1 lone pair electron will be present on nitrogen atom, NH3. ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर डॉट के फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है. You see, अब नाइट कार्बन की बारी. एज पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन, बट after giving some energy, 1 electron will transfer from 2s to vacant 2pz. तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा
4 unpaired electron. That's why carbon can form 4 bonds. तो कार्बन अपनी बॉन्डिंग कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज कर लेता है. अब बोरॉन के बारे में देखिए. ओनली 1 unpaired electron is there. इस boron को when we supply certain quantity of energy at that time, one electron will transfer from 2s to vacant 2p orbital and total 3 unpaired electron will observe. That's why boron can form 3 bonds. जब boron 3 bonds बनेगा, at that time one 2pz orbital will be vacant. तभी ये orbital है, this is 2pz. सपोज इलस्ट्रेशन ले लो BH3, ये बोरॉन के साथ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए. ये 2pz ऑर्बिटल है, 2pz. अब बेरिलियम के बारे में, एज पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बेरिलियम, बट व्हेन वी सप्लाई energy at that time one electron will migrate from 2s to 2px orbital. एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, तो 2 unpaired electron हो गए. That's why beryllium can form 2 bonds. अब देखो, when beryllium form 2 bond, at that time 2 vacant orbital is to be indicated on beryllium. तो BeH2, this is illustration. beryllium 2 bond से बनेगा. These 2 electrons are utilized for the bond formation. And 2py and 2pz orbital. This is 2py and 2pz. अब देखो, in case of lithium, only one unpaired electron. That's why lithium can form only one bond, LiH. जब lithium एक बॉन्ड बनेगा, तभी उनके पास 3 vacant orbital होगी. ये this is 2px, 2py and 2pz, LiH. Li के साथ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाया है. अब समझो जरा, तो हाइड्रोजन हर हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा. इसको पकड़ो, हीलियम 0 बॉन्ड बनाएगा, लिथियम 1 बॉन्ड, बेरिलियम 2, 3, 4, 3, 2, 1. पहले नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, मैक्सिमम 4 आएगा, इसके बाद डिक्रीज होता जाएगा. तो अब देखो, बॉन्ड फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एटम. देखो, कार्बन और कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर विल बी सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, sometimes double. You can observe double bond between 2 carbon atoms and triple bond also. कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 1, 2, 3 बॉन्ड ओपन इंडिकेट करने पड़ेंगे. यहाँ भी 3 बॉन्ड इंडिकेट करने पड़ेंगे ओपन. सपोज डबल बॉन्ड है तो 2 वैलेंसी ओपन इंडिकेट करनी पड़ेगी. यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 3 बॉन्ड बना लिए, 1 बॉन्ड ओपन करना पड़ेगा, एक यहाँ ओपन इंडिकेट करना पड़ेगा. If there is a single bond between 2 carbon atoms, they are known as alkane compound. If there is a double bond between 2 carbon atoms, they are known as alkene compounds. And ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम अल्काइन बोलते हैं. यस, कार्बन और नाइट्रोजन, व्हाट इज द बॉन्डिंग? यस, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स. There are 3 possibilities. There will be single bond between carbon and nitrogen, double bond between carbon and nitrogen, and triple bond between carbon and nitrogen. कार्बन 4 बॉन्ड बना था, यहाँ 1 बनाया है तो 3 ओपन वैलेंसी इंडिकेट कर दो. इसके साथ जो भी जुड़े हमको कोई लेना देना नहीं है. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तभी यहाँ 2 बॉन्ड कम है तो 2 ओपन वैलेंसी कर दो. यहाँ डबल बॉन्ड है तभी 2 ओपन वैलेंसी कार्बन की रहेगी, 1 ओपन वैलेंसी नाइट्रोजन की रहेगी. इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ कार्बन की 1 ओपन वैलेंसी, नाइट्रोजन ने तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया. इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, दिस कंपाउंड्स आर नोन एज एमाइन कंपाउंड्स. डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, देयर इज carbon and nitrogen atom, these compounds are known as imines.
If there is a triple bond between carbon and nitrogen, these compounds are known as a cyanide compound. Otherwise, you can say nitrile compounds. Yes, next, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड बनाने की कैरेक्टरिस्टिक. कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा. तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड पॉसिबल होगा या डबल बॉन्ड पॉसिबल होगा. देयर इज नो पॉसिबल ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की लिमिट आ गई. तो यहाँ कार्बन की 3 ओपन वैलेंसी, ऑक्सीजन की 1. These compounds are known as alcohol, otherwise you can say ether compounds also. In this case, ketone compound, otherwise, yes, इसको हम ketone compound बोलेंगे. Now, कार्बन और सल्फर की बॉन्ड बनाने की कैरेक्टरिस्टिक्स. कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा. 2 पॉसिबिलिटीज है. फर्स्ट वन, single bond between carbon and sulfur. Second, double bond between carbon and sulfur. इस टाइप के कंपाउंड को we can say thiol, otherwise we can say thioether. If there is a double bond between carbon and sulfur, they are known as thioketones. In case of carbon and halogen, carbon can form 4 bond, halogen can form 1 bond. So there will be only one possibility, single bond between carbon and halogen. These organic compounds are known as haloalkane, otherwise alkyl halide compounds. Finally, carbon and hydrogen. Carbon can form 4 bond, hydrogen can form 1 bond. उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. ओके, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच प्रिशा. यहाँ अटकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे. ओके, गुड बाय.